Well, good morning, dear children. How are you today? I think you will be fine there. I'm Ashish sir, and welcome back. Today we will study a new chapter of English grammar, active and passive voice, right? In this lesson, we will read definition, rules, examples, exercises of active and passive voice, right? So, let's begin. Read these sentences. Mother wakes Shana in the morning, and Shana is woken by a mother in the morning. Right? The sense of both sentences are same. Right? But structures are different. Clear? If you have studied the tense very well and carefully, then it will be easy to study active and passive voice right now. So before you start the chapter, you have to revise once or twice of the tense, right? Well, look here. In the first sentence, mother is the subject, wax is the action, and she performs, and Shana is the object. Right now, in first sentence, you can observe here, mother is the subject, right? And here, this one is action verb, subject, and Shana. This one is object. Right? Name of worker is known as subject and name of work is known as verb. Right now? Since she receives the action of being woken up. Right now? When the subject of the sentence is the doer of the action, the verb is said to be in active voice. If someone is asked you about the definition of active voice, then you will have to tell when the subject of the sentence is the doer of the action. Here, who is working? Mother. Right now? Mother wakes Sana, na? Or Sana wakes mother? Mother wakes Sana. Then the worker is subject here. Who is working? Mother is working here in this sentence, right? So mother is a subject and it is a doer also. Right? Then when doer is the subject of any sentence, then the verb is said to be in active voice. Clear? Right? When the subject of the sentence is the doer of the action, the verb is said to be in active voice. What's the definition of active voice? What's the definition of active voice? When the subject of the sentence is the doer of the action, the verb is said to be in active voice. Right? Any doubt? No doubt. Punit plays the guitar. Right? Doer. Punit is doer. Dhara eats the ice cream. Dhara is the doer. Then these both sentences are said to be in active voice. Any doubt? No doubt? What is active voice? When the subject of the sentence is the doer of the action, the verb said to be in active voice. In Hindi, जब सब्जेक्ट डूअर होता है, डूअर मीन्स काम करने वाला होता है, जो काम करता है, तो उस सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस में बोलते हैं. अच्छा, ये होता क्या है डूअर? डूअर मतलब काम करने वाला, यानी सेंटेंस में जो काम करता है. आप फर्स्ट सेंटेंस पे ऑब्जर्व करो, मदर वैक्स शाना इन द मॉर्निंग. यहाँ पे काम कौन कर रही है? जगाने का काम कौन कर रही है? ठीक है, कौन कर रही है? तो मदर कर रही है. मदर ही कर रही है ना, या साना कर रही है? नहीं, साना पर इफेक्ट पड़ रहा है इस ये वर्ब का और सब्जेक्ट का. सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का, यानी मदर और वैक्स दोनों का इफेक्ट साना पे पड़ रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट है. राइट ना?
और डूअर क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, मदर है। तो मदर डूअर है और जब सब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, राइट। तो ये जो है वो एक्टिव हो गया, राइट। आज जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सब, सॉरी, जिसमें डूअर जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाए, यानी कि ये डूअर ऑब्जेक्ट हो जाए और इसका सब्जेक्ट इसमें इसका ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट हो जाता है, मतलब डूअर जिसका ऑब्जेक्ट हो जाए, यानी साना इज वॉकन बाय मदर इन द मॉर्निंग, यानी साना को जगाया जाता है किसके द्वारा, तो माँ के द्वारा। कब, तो मॉर्निंग में, यानी कि यहाँ पे जो जगा रही है ना वो ऑब्जेक्ट हो गई। देखो तो जो काम कर रही है, जो डूअर है, काम कौन कर रही है, मदर, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट बन गई। तो इस प्रकार से जो वर्ड ऑब्जेक्ट बन जाते हैं सेंटेंस में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव फॉर्म में कहते हैं। क्या कहते हैं, पैसिव में कहते हैं, राइट। मीन्स अगर एक्शन, मीन्स कि अगर सब्जेक्ट जो है डूअर हो, काम करने वाला हो, तब क्या हो, तब क्या होता है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। और अगर ऑब्जेक्ट काम करने वाला हो सेंटेंस में, तो वो पैसिव फॉर्म में होता है। दैट्स ऑल, राइट। एनी डाउट, नो डाउट, वेल डन। नाउ क्लियर है ना, फिर से रिवीजन करो। अगर सब्जेक्ट काम करने वाला हो, डूअर हो किसी सेंटेंस में, तो एक्टिव होता है, और अगर ऑब्जेक्ट काम करने वाला हो, डूअर हो, तो पैसिव होता है। बस सिंपल सा फंडा है, एकदम बारीकी से हम लोग आज समझेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, बहुत अच्छे से, एकदम इंटरेस्टिंग। यदि चैप्टर को बनाना है तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, और उसको जैसे खेलने जाने से पहले खुश होते हो, जैसे किसी पार्टी में जाने से पहले खुश होते हो, सॉन्ग गाने से खुश होते हो, वैसे ही एकदम इतना इंटरेस्टिंग बना दो, इतना खुश होकर के स्टडी करो कि आपको एक ही बार में सारा समझ में आ जाए, और 2-3 बार आपको रिवाइज करते करते आपको इतना याद हो जाए कि पूरे साल वो याद रहे। कभी भी कोई भी पूछे तो फट से आप आंसर दे दो, राइट ना। चलिए खैर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मैं आप ही के बुक से आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट हो तो आप इजिली उसको समझ सको अपने घर पे, राइट ना। आप वीडियो को पॉज करके, यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। इन द सेकंड सेंटेंस, साना इज द सब्जेक्ट, however she is not the doer of the action। सेकेंड सेंटेंस में अभी ऊपर में जो था वो क्या था, साना था ना, साना सब्जेक्ट। इसमें देखिए तो साना इज वॉकन बाय मदर इन द मॉर्निंग, इसमें क्या है, साना जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन साना काम नहीं कर रही है। साना इज द सब्जेक्ट, साना सब्जेक्ट है, however she is not doer of the action, वह काम नहीं कर रही है। she is still the one receiving the action, but because the, ये एक्शन को, ये काम को क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, यानी कि इसके ऊपर मतलब कोई अदर पर्सन जो है वो काम कर रहा है और ये रिसीव उसे कर रही है। बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स हैज चेंज, द फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज बीन चेंज्ड एंड साना हैज बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें देखो, इसमें सेकेंड सेंटेंस में क्या है, इसमें जो है वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो गया है, सेंटेंस पूरी तरह से चेंज हो गया है। उसमें क्या था, इसमें देखो आप, मदर वेक साना इन द मॉर्निंग, इसमें साना इज, साना इसमें इज का यूज हो गया, यहाँ पे भी3 का यूज हो गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन बाय का यूज हो गया, मदर इन द मॉर्निंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। मैं अभी 1 by 1 रूल्स करके एकदम पढ़ाऊंगा, आपको पूरा क्लियर कराऊंगा, बस आपको अच्छे से स्टडी करना है, राइट। एक भी डाउट एक्टिव और पैसिव वॉइस का नहीं रहने दूंगा, क्लियर। बस आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं, चूंकि एक भी वीडियो यदि आप मिस किए तो आप बहुत सारा चीज़ मिस कर देंगे। आपको जैसे आप टेंस का वीडियो यदि मिस किए होंगे तो आपको ये क्लियर समझ में नहीं आएगा, राइट। आप अभी एक्टिव पैसिव वॉइस को यदि मिस करोगे तो इंग्लिश में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, स्पीकिंग में भी, राइटिंग में भी। यानी आपका राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग जो स्किल्स होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है, वो आपका अच्छा नहीं होगा। इस नरेशन वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके स्पीकिंग और राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। खैर चलिए आगे समझते हैं। ये समझ में आया ना एक्टिव और पैसिव। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, राइट। When the subject of the sentence is receiver of the action, the verb said to be in passive voice। जब कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है रिसीवर होता है, किसी काम का रिसीवर होता है, ठीक है, किसी वर्ब का रिसीवर होता है,
तब उस वर्ब को हम लोग पैसिव वॉइस में कहते हैं। जैसे देखिए द गिटार, गिटार जो है वो बजाया जा रहा है किसी के द्वारा, ना कि गिटार खुद से बज रहा है। यहाँ पर क्या है, द गिटार इज प्लेड बाय पुनीत, किसके द्वारा बजाया जा रहा है भाई, पुनीत के द्वारा बजाया जा रहा है। यानी काम कौन कर रहा है, डूअर कौन है, तो डूअर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है यानी पुनीत है। और डूअर जब ऑब्जेक्ट होता है तो पैसिव वॉइस में होता है, राइट। आइसक्रीम इज इटेन बाय धारा, यानी धारा के द्वारा आइसक्रीम खाया जाता है, मतलब यहाँ पर डूअर कौन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, डूअर है, काम करने वाला है। तो जब काम करने वाला ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस होता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है, तो भाई जो सब्जेक्ट है वो काम को रिसीव कर रहा है। क्लियर, आप समझो। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जा रही है, आप रिसीव कर रहे हो, राइट। यू आर टॉट बाय मी, यू आर टॉट बाय मी, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अब सोचो, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे यू आर टॉट बाय मी, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तो आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। अच्छा, काम कौन कर रहा है, यहाँ पे मी कर रहा है ना, मैं कर रहा हूँ ना, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, डूअर, काम यही कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट डूअर रहे तो उसको क्या कहते हैं हम, पैसिव फॉर्म में कहते हैं, यानी कि ये पैसिव है। समझ में आ रहा है। अच्छा, रिसीव कौन कर रहा है एक्शन को, आप रिसीव, यू। एकदम समझो, बारीकी से समझो, इसीलिए मैं इतना बार बार रिपीट करके आपको समझा रहा हूँ, राइट ना। चलिए अब कुछ रूल्स भी देखते हैं, कुछ मोर एग्जांपल्स देखते हैं, राइट। Look this table on how to change sentences from active to passive voice for simple present tense. Simple present tense का स्ट्रक्चर आपको पता है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखो दिया हुआ है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। देखो यहाँ है रितु, रितु को यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिए और रोहित को सब्जेक्ट बना दिए। फर्स्ट रूल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस रहे तो उसमें क्या करते हैं, इज एम आर का यूज कर देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ये सिंगुलर है तो इसका यूज होगा, हो तो आपको पता है। और हमेशा जो है वो V3 का यूज होता है, चाहे कोई भी आपका कोई भी सेंटेंस रहे। इंडिफिनिट रहे, कंटिन्यूअस रहे, परफेक्ट रहे, कोई भी स्ट्रक्चर रहे, उसके साथ प्रेजेंट का रहे, पास्ट का रहे, फ्यूचर का रहे, पैसिव फॉर्म में हमेशा ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव फॉर्म ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ टेंसेस, राइट। एनी डाउट, ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ टेंसेस, क्लियर। फर्स्ट रूल जान गए कि V3 का यूज होता है, भाई ये तो क्लियर हो गया। कोई भी कहीं भी, इसमें कोई भी कहीं भी हेल्प, ये मान लो यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ रीडिंग है, यहाँ हेल्प है, यहाँ टूक है, यहाँ पे डेकोरेटिंग है, रिटर्न है, V3 का यूज करें। रिटर्न का V3 रिटर्न, ठीक है, डेकोरेटिंग का V3 डेकोरेटेड, टूक का V3 टेकन टेकन, लेफ्ट का V3 लेफ्ट, नो चेंज, रीडिंग का V3 रीड, हेल्प का V3 हेल्प्ड, राइट ना, यानी हमेशा V3 का यूज होता है। फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद देखो, इसको क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, क्लियर। अच्छा, जो पैसिव में हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे जस्ट पहले हम लोग बाय का यूज करते हैं। देखो यहाँ बाय, प्रीपोजिशन बाय 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 बाय, है या नहीं, आप ध्यान से देखो तो यहाँ किससे पहले है, ऑब्जेक्ट से पहले। किस में ऑब्जेक्ट से पहले, पैसिव वॉइस में, यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। बस 3 रूल जान गए ना आप आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। देखो, आप अच्छे से टेंस नहीं पढ़े हो फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। और एक बार अच्छे से अगर टेंस का स्ट्रक्चर तुम आप क्लियर कर लोगे तो आपको और अच्छे से वॉइस समझ में आ जाएगा, राइट। फर्स्टली यू शुड learn the structure of you should read the structure of all the structures of tenses, right. After that you will have to study the voice, clear, to better understanding. देखिए आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया। अब देखो, रितु हेल्प्स रोहित, अब कुछ नहीं करना, इज का यूज कर दिया, यहाँ पे इज एम आर का यूज होता है इसमें, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कंटिन्यूअस में क्या करना है, बीइंग का यूज कर देना है, कोई भी कंटिन्यूअस हो उसमें क्या लगा देते हैं,
बाकी सब सेम रहेगा। देखिए तो यहाँ न्यूज़पेपर इज बीइंग का यूज़ कर देते हैं, चूंकि यहाँ पे इसका हम भी3 यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, सेम चीज़ है। यहाँ पे देखो क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लेफ्ट लगा है, लेकिन इसमें क्या कर देंगे, बस बीन लगा देंगे, बाकी सब सेम। तो इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, आप पढ़े हो, हैव हैज प्लस भी3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। उसी तरह से यहाँ देखो सिंपल पास्ट टेंस में संजय टू का बस, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट प्लस भी2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इधर वाला स्ट्रक्चर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पैसिव का दे रहे हैं, क्योंकि आपको एक्टिव का सेम स्ट्रक्चर वही टेंस वाला है ना। सब्जेक्ट प्लस क्या ये है, भी2 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या करेंगे, वाज वर का यूज़ कर देंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस भी3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, सारा स्ट्रक्चर लिखते जाना आप। एक्टिव का सेल्फ लिखना है, पैसिव का जो दे रहे हैं वो लिखना है। इसमें देखिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे एक बात और, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चाहे वो प्रेजेंट का रहे, पास्ट का रहे या फ्यूचर का रहे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है, पैसिव फॉर्म नहीं होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए रमन, इसमें क्या हो गया, रमन वाज डेकोरेटिंग द रूम, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम बताया था ना, कंटिन्यूअस में बीइंग लगाते हैं, दोनों कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एनी डाउट। अब देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस बी प्लस भी3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एनी डाउट, नो डाउट ना। और सॉरी यहाँ पे बीन लगेगा ना, मुझे लग रहा था मैं कुछ छोड़ा। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस भी3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एनी डाउट, सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब एक बार रिपीट करते, रिवाइज करते हैं इसको। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जब तक आपको नहीं आता है उसको छोड़ो मत एकदम। समझ में आ रहा है ना, आप उसको भले ही आपको 10 बार स्टडी करना पड़े, आप कभी बोर फील मत करो स्टडी में। एकदम 100% एनर्जेटिक होकर के आप स्टडी करोगे ना, उसके बाद देखोगे कितना इंटरेस्ट आपके अंदर आ जाता है, राइट। देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट सेंटेंस, रितु हेल्प्स रोहित। ठीक है, आप 1-2 बार देख कर स्टडी करो, उसके बाद मैं पूछूंगा और आप बिना देखे आप बताओगे, राइट। रितु हेल्प्स रोहित, रोहित इज हेल्प बाय रितु। आप देखते जाओ एकदम आराम से। फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर इज बीइंग रीडिंग बाय फादर, बीइंग, राइट ना। Someone has left the light on. The light has been left. The light has been left on by someone, right? Sanjay took a bus. A bus is taken by Sanjay. Raman was decorating the room. The room was being decorated by Raman. I will return the books. I will return the books. The books will be returned by me. Right. चलो आप ध्यान से देखो एक बार। रितु हेल्प्स रोहित, तो रोहित इज हेल्प बाय रितु। फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो द न्यूज़पेपर इज बीइंग रीड बाय फादर। Someone has left the light on. The light has been left on by someone. Sanjay took a bus. A bus is taken by Sanjay. Raman was decorating the room. The room was decorated by Raman. I will return the books. The books will be returned by me. अब आपको एकदम नहीं देखना है, सिर्फ एक्टिव पे नजर रखना है, पैसिव नहीं। पैसिव को आप हाइड कर दो कुछ किसी बुक्स वगैरह से। चलो ठीक है, चलो मैं भी हाइड कर देता हूँ, राइट ना। अब आपको सिर्फ एक्टिव देखना है और पैसिव बताना। चलिए बताइए तो, रितु हेल्प्स रोहित। What's the passive form of the sentence? Ritu helps Rohit. Rohit is helped by Ritu. Very good. Second, father is reading the newspaper. Cheating नहीं करना है, बुक्स को ओपन नहीं रखना है, याद रखना आप। Father is reading the newspaper.
द न्यूज़पेपर इज बीइंग रीड बाय फादर। समझ में आ रहा है? मैं आपको टाइम दे रहा हूं। थर्ड सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समवन हैज लेफ्ट द लाइट ऑन। चलिए ट्राई कीजिए, फटाफट याद कीजिए स्ट्रक्चर को। क्या स्ट्रक्चर दिए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। चलो इसको भी बता दिए, फिर भी बताओ। गुड, द लाइट हैज बीन लेफ्ट ऑन बाय समवन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन इज सिंपल पास्ट टेंस का। देखो, संजय टुक अ बस। संजय टुक अ बस। व्हाट्स द पैसिव वॉइस, पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस? चलिए बता देते हैं, स्ट्रक्चर देकर हेल्प कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। अ बस वाज टेकन बाय संजय। क्लियर? वेल डन। नेक्स्ट वन इज Raman was डेकोरेटिंग द रूम। पैसिव फॉर्म, टेल मी क्लियरली। I will help you. Subject plus was were plus being plus by plus object. The room was being decorated by Raman. Clear? Well done. Next one. Simple future tense. I will return the books. चलिए बताइए फटाफट। The books will be returned by me. Very good. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? What's the structure of simple future tense of passive form? Subject plus shall will plus be plus V3 plus by plus object. Very good. बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा प्यारे बच्चे आपके परफॉर्मेंस को देख करके। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, स्टडी कर रहे हो ग्रामर को। एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना के इसे स्टडी करो, क्योंकि आपको SST में, साइंस में आपको इवन मैथ्स के स्टेटमेंट वगैरह लिखने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ग्रामर यदि अच्छा से आप पढ़ोगे तो आपको लिटरेचर में, मैथ्स में, मैथ्स में, SST में, साइंस में, सारे सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिलेंगे। तो पहले आपको ग्रामर को एकदम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मान करके स्टडी करना है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना करके स्टडी करना है। ठीक है? ये सिर्फ आप मार्क्स गेन करने के लिए, एग्जाम में मार्क्स गेन करने के लिए स्टडी मत करो, बल्कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए स्टडी करो, है ना? चलो बहुत बढ़िया, वेल डन। लेट्स टेक होमवर्क। चेंज द सेंटेंसेस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस राइट टू पैसिव वॉइस। क्लियर? चलिए एक्टिव से पैसिव आपको चेंज करना है। फटाफट लिखते जाओ, आप नोट डाउन करते जाओ। यदि प्रॉब्लम होगा तो आप पीछे रह जाओगे, तो पीछे रह जाते हो तो आप पॉज करके और लिखते जाओ फटाफट, फास्ट राइट। फर्स्ट, द टीचर चेक्स द फर्स्ट is done for you. The teacher checks the notebooks. The notebooks are checked by the teacher, right? Second one, Mr. Banerjee wears a green muffler. Next, Omar writes a story. The rabbits chases the butterfly. The baker sells the cakes. Mary tidies the table. Hamid reads the letter. Nakul plays football till 6 p.m. Right? You have to change into passive form. Next, complete the sentences with the present continuous tense forms of the words in the brackets and make sure the sentence is in the passive voice. Right? अब देखिए आपको क्या करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको चेंज करना है। ठीक है? आप देखो, द स्कूटर ब्लैंक, जैसे फर्स्ट, द फैन इज बीइंग रिपेयर्ड बाय सौरभ। एक बार मैं फिर से स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। ठीक है? इसका स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस, बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखो यहाँ सब्जेक्ट है, इज है, बीइंग है, V3 है, बाय है, ऑब्जेक्ट। राइट? इसी तरह से आपको लिखते जाना, फटाफट कीजिए। द स्कूटर,
क्लीन का यूज करके, बाय माई फार्मर, क्लीन का यूज करके आपको बनाना है। क्या होगा इसमें, द स्कूटर इज बीइंग, क्लीन का भी3 क्लीन बाय माई फादर, राइट। इसी तरह से द गोट्स ब्लैंक स्पेस मिल्क बाय द गोदर्ड, राइट। द माइस ब्लैंक स्पेस चेज by the cat. I blank space drop at school by my mother. The function blank space organized by the committee. The wall blank space paint by Suhash. The flowers blank space arranged in the base by Bakul. Right? चलो इतना homework हो गया. Let's take more homework. Change the sentences in the present perfect tense from passive voice to active voice. यहाँ पे passive voice दिया हुआ है, इसका active voice बनाना है, लेकिन tense इसमें क्या है, present perfect tense. passive voice का जो form है वो किसमें है, present perfect tense में है। तो present perfect tense का जो है वो active structure क्या होता है, subject plus, यदि आप टेंस पढ़े होगे तो आपको याद होगा V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे यहाँ भी दिया माई होमवर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी। अब बताओ तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है। हाँ, एक बात और मैं भूल गया था, सॉरी, आपको ऑब्जेक्ट बताना भूल गया था। जैसे आई का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, ही का ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, हिम होगा, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा, राइट ना। और यू में नो चेंज, यू का यू ही होता है, ठीक है। इसी तरह से दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा, ठीक है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस होगा, राइट। ये सब याद कर लीजिएगा आप, राइट। जैसे यहाँ देखो माई होमवर्क हैज़ बिन फिनिश्ड बाय मी, यहाँ पे लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट मी है ना, तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आई हो जाएगा, क्योंकि आई का जब ऑब्जेक्ट मी होता है तो मी का सब्जेक्ट आई, ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो हिम का सब्जेक्ट ही, राइट ना। तो जब हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे मी ही, अगर यहाँ पे मी हैव फिनिश्ड माई वर्क लिखेंगे तो सेंटेंसेस विल बी रॉन्ग, राइट ना, गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तो ये भी याद आप रखिएगा, किसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसका सब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट। द कैरट हैज बीन ईटन बाय द रैबिट। अब यहाँ पे रैबिट दिया हुआ है तो रैबिट क्या है, नाउन है, इसमें नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होगा। द फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड बाय द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रेन, तो इसमें भी सब्जेक्ट बनाओगे तो नो चेंज होगा। द लंच हैज बीन पैक्ड बाय फादर, फादर है, ये भी नो चेंज, ठीक है। द विंडो हैज बीन ब्रोकन बाय सुनील, सुनील है, तो इसमें भी नो चेंज, राइट। आगे देखते हैं। द रूम हैज बीन क्लीन बाय हर, हर का क्या हो जाएगा, इसको अगर चेंज करेंगे यहाँ पे तो सी हो जाएगा। इतना हेल्प मैं कर दे रहा हूँ, राइट, क्योंकि सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो हर का सब्जेक्ट सी, राइट। द क्लोथ्स हैव बीन आयरन्ड बाय रूपा, नो चेंज। डिनर हैज बीन कुक्ड बाय दिनेश, नो चेंज, राइट ना। यहाँ तक क्लियर है। ये वर्क करोगे आप, वीडियो को पॉज कर करके और वर्क को अपना करते जाना क्लियर। और यू विल हैव टू सेंड ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, क्लियर। मैं व्हाट्सअप नंबर अभी आपको दूंगा, उसी पे आपको सेंड करना है सारे वर्क को डन करके। चलिए आगे चलते हैं। डी, complete these sentences with the simple past tense forms of the words in the brackets. Make sure the sentence is in the passive voice. ये जो है वो passive voice में आपको क्या करना है, बनाना है पैसिव वॉइस में आपको। लेकिन ये सेंटेंस जो है वो किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव फॉर्म क्या होता है डियर चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट प्लस, याद करो, वाज वर प्लस, और क्या होता है V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यही होता है पैसिव फॉर्म का, पैसिव फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस का, राइट। द पोएम वाज रेस्पेक्टेड बाय जया। The wallet blank space gift by my friend. The prize blank space win by Hemant. The notebooks blank space correct by the teacher. The notebooks blank space correct by the teacher. The prize blank space win by Hemant. हो गया ना। A window blank space open by Maya. The novel blank space right by MS Desai. ये जो ब्रैकेट में दिया है ना, इसी को V3 में चेंज करके वाज वर्क का यूज कर देना है, कुछ नहीं करना है। देखो तो आप, द वैलेट है, वैलेट के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा ना, सिंगुलर है तो वाज, ठीक है। उसके बाद इसका V3 क्या होगा, गिफ्टेड। विन का V3 ऑन, करेक्ट का V3 ओपन का V3, राइट का V3, इसी तरह से लिख देना है। राइट का 18 होता है ना। चलो
आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझे होगे और इसी तरह से आपको समझ समझ करके और सारे एक्सरसाइज को और क्वेश्चन को करते जाना। डियर चिल्ड्रेन, यू हैव टू डू ऑल द वर्क्स, all the homeworks, right, and send on my personal WhatsApp number 9693545170. Again, 9693545170, right? आई होप कि आप घर पे बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो, एकदम एनर्जेटिक हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए दुनिया का कंडीशन कितना भी चेंज हो जाए, आपको चेंज नहीं होना है, आपको फर्क आपके स्टडी पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए, राइट। आपको अपना स्टडी एकदम कंटिन्यू करना है और एनर्जेटिक हमेशा रहना है, क्योंकि दुनिया कोई ताकत यदि आप पढ़ना चाहते हो तो नहीं रोक सकता है। चाहे आपके साथ कंडीशन कुछ भी हो, आपके स्कूल बंद हो, आपके टीचर्स तो खैर अभी पढ़ा ही रहे हैं, पढ़ा रहे हो अथवा ना पढ़ा रहे हो, आपके घर का क्या स्थिति है, आपके पेरेंट्स पढ़े हो अथवा ना पढ़े हो, आपके एल्डर्स हेल्प कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपका क्या इन्वायरमेंट है, ये कुछ आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए ये सभी बातों का, राइट। क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आपको सेल्फ डिपेंड बनना है, बिकॉज सेल्फ डिपेंड इज बेटर देन ऑल। नोट कर लो आप अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पे, आप अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे नोट डाउन कर लो, सेल्फ डिपेंड इज बेटर देन ऑल, सेल्फ डिपेंड इज बेटर देन ऑल, राइट। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।